Uh, so, Sonali, Yeah. basically, yesterday and the day before yesterday, we had an introduction session Okay. where Okay. Yeah. all the students and myself we introduce with each other, and I introduce what is this program and what you are going to learn in this program. So Okay. Basic. those things are covered in both the sessions, and you can have always recording with you. You can look at the recording by clicking on the portal. Okay. Sure. Sure. Yeah. So recordings of 1 hour class for Monday and Tuesday are available on portal. So I recommend that along you are from Umang Sanstha. No. No. I am not from there. I'm from Hyderabad. Okay, so you joined first time. Yeah. First time. Today is the first day. Okay, Sonali. And so is Rushikesh or Vikasi aware about your Yeah. enrollment in this Yeah. course? Yeah, because actually, when I missed the class, I think from the beginning, so Mhm. Vikashi ma'am actually coordinated with me and asked me why didn't to join because I was a little confused about the timings. So Uh, yesterday she clarified that once in every day, Monday to Saturday, 9:30 to 10:30. yes. So I got the clarity. So today I'm here. Okay, perfect. Yeah. Right. And make sure that this class will be in Hindi most of the time, huh? Oh, okay, 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 okay. Just Smita. Oh, oh yeah. Okay, fine. I understand, but yeah, communication is a bit problem, but I understand. I can communicate also. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, so it is 9:30 और हम अपनी क्लास अब शुरू कर रहे हैं. सो मैं क्लास शुरू करने से पहले उन सभी लोगों को इंक्लूड करना चाहता हूं जिन्होंने आज पहली बार इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और आज से शुरू कर रहे हैं अपना कोर्स. तो अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कीजिए जो लोग आज से शुरू कर रहे हैं अपना ये प्रोग्राम. ओके, सो वन इज सोनाली दास फ्रॉम हैदराबाद एंड हु एल्स. और कोई है जिन्होंने आज से लॉग इन किया है इस कोर्स के लिए? ओके, नहीं है. और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज आप अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. अगर आप वीडियो स्टार्ट नहीं करते तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है. राइट, ऑनलाइन कोर्स में ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑडियो और वीडियो दोनों प्रॉपर होना चाहिए और आप हमेशा वीडियो पे होने चाहिए, वरना ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है ना. तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग वीडियो पे आ जाइए. मैं नाम बोलूँ: नीलेश, लब्धि, जीतू, So सुपर्णा, I have some network संगीता. issues, sir, but I'll try to turn on my camera from tomorrow onwards because if I'm just going to turn on my camera, probably some audio issue will come up. So Let that's us the see. reason. Hello, Sonali. Let us see that if there is an issue once you start your video. Let us see. So please come on video first. Yeah, yeah, yeah. Yeah. एंड आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप अपना नाम, आप कौन से सिटी से है, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, और Okay, आप इस प्रोग्राम में क्यों आए हो, क्या सीखना चाहते हो, और इससे आपको लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, okay, yeah. है ना.
और आप So, अपने बारे में थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब फैमिली के बारे में बता सकती है, आपकी oh, हॉबीज के बारे में बता सकती है, ठीक है, इतनी चीजें आपको बोलनी है। okay. Shall I या start प्लीज। now? या Yeah. As you all know that I'm Sonali. I belong to Hyderabad, and हिंदी में हो सकता है सोनाली, बहुत सारे लोग इंग्लिश ओके नहीं ओके जानते। मैं सोनाली हूँ। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव डन माय इंग्लिश आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. हम्म। And coming to my hobbies, means like I love reading books, and watching documentaries, and ओके। yeah, and socializing with people. ओके। एंड और क्या बोले थे सर आप बोलने के लिए? हाँ, और फिर आप ये अपना फैमिली कोर्स के बारे में ज्वाइन। बता सकते हाँ, हैं। या मैं पेरेंट्स के साथ हैदराबाद में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स है और मैं, और मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है। मैं ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। ओके। ओके। और द पर्पस और द इंटेंशन behind joining this course is that I'm very much thorough with the Microsoft Word, but Word and PowerPoint, but the Excel is little bit problem. So that is the reason I have joined, so that I can implement those things in my प्रोफेशनल लाइफ। मीन्स ये जो सीख है मैं प्रोफेशनल फील्ड में, आई कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स हम्म। एक्चुअली. So just like pivot table and all the advanced Excel, like data handling, and then VLOOKUP and HLOOKUP and all this stuff ना, मुझे थोड़ा confusion लगता है. I cannot means remember, ज़्यादा देर तक remember नहीं होता जैसे मैं कर रही हूँ अभी. This point of time I can remember, but after that only I tend to forget things. So that is my major issue. Yeah. So that is the purpose, to just to brush up my knowledge once again. I joined this session, and I'm looking forward to learn more and more from you, sir. ग्रेट। Thank you. Yeah. या तो वेलकम सोनाली, आपका स्वागत है इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फंडामेंटल कोर्स के अंदर। Thank और you. जो चीजें आपने बताई, काफी चीजें बताई, वी लुकअप, एच लुकअप एंड बहुत सारी चीजें एक्सेल के बारे में बताई, राइट। और ये सारी चीजें कैसे टेक्निकल है, और एडवांस कोर्स जो लोग करते हैं ना उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती है। मैं यहाँ पे ये जो फंडामेंटल कोर्स है ना उसके अंदर इसको कवर करने की बिल्कुल पूरी पूरी मेरी कोशिश करूंगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट है ना सोनाली, उनका हम्म। कितना ग्रास्पिंग पावर है, वो कितना कैचअप कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, या ठीक है sir. गुड। हाँ, ठीक है, no problem, sir. Okay. So include yourself in the program because you know Microsoft Word and PowerPoint also, right? So, हाँ, little bit तो I know, but yeah, at least I okay. will learn more after joining. और भी तो कुछ सीखने को मिलेगा. जो लोग इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बेसिक तीन कोर्स होते हैं, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन Hmm. एक्सेल एंड देन PowerPoint. पावर पॉइंट। Yeah. ये तीन कंपोनेंट ऐसे इस प्रोग्राम के जो बेसिक है ना। और ये जो तीन बेसिक जो चीजें वो हम इस प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या आउटलुक वो सब नहीं कवर करने वाले, राइट। क्योंकि जो जिसको प्रोफेशनली काम करना है या अपना पर्सनल लेवल पे सारी चीजें मैनेज करनी है कंप्यूटर के अंदर, जिनको पूरा पेपर वर्क की जगह पे पेपर लेस वर्क करना है, बिना पेपर का, तो ये तीन जो है ना पैकेज, वो Hmm. बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, हाँ. राइट। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। Thank you, तो sir. कल मैंने आप लोगों को जैसे पूरा बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कैसे चलेगा, क्या क्या कवर करने वाला हूँ। और कल मैंने एक लाइन बोली थी, और वो लाइन मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ। और ये लाइन है कि रोज सुबह हम चाहे अपने घर की विंडो खोले या न खोले, हम लोग जरूर माइक्रोसॉफ्ट विंडो खोलते हैं। या सब लोग एग्री Agree. है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऐसी विंडो है जिसको अगर हम खोलना सीख जाए, उसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में क्या क्या फैसिलिटीज है, अगर ये हम सीख ले, तो उसके बाद जो हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सीखेंगे ना, उसमें और ज्यादा हमें आसानी होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अ, हाँ सोनल सर, मेरा कैमरा क्यों ऑन नहीं हो रहा? सोनल, मुझे लगता है कि आपका कैमरा, इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यू लग रहा है मुझे। आप लैपटॉप से या कैमरा से हो सोनल? अरे, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप किससे ज्वाइन किया है सोनल? ओके, सो लैपटॉप से ना। तो
एक बार चेक करो ना अपने जो ये होता है ना, वीडियो का जो ऑप्शन होता है ना सोनल, आप जब जूम में आते हो नीचे एक वीडियो का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आपको अपना कैमरा जो होता है ना उसका चेंज करना है। आप कैमरा चेंज करके देखो, सेट स्टॉप वीडियो वाला जो आइकन है ना, वहां पे जाके सेटिंग्स में जाके तो हो जाएगा। ओके। हाँ। तो ये विंडो जो है ना, ये इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर है वहां पे काम करने में इसलिए काम में आता है, क्योंकि हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में फाइल्स बनाते हैं। अगर हमें कोई लेटर लिखना है तो वो लेटर का हम नाम देंगे, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके। एक्सेल में भी हम कुछ काम करते हैं तो उसका नाम देते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हुए। पावर पॉइंट में भी कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हुआ। अभी ये डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, और इसका नाम देने के बाद उसको हमें एक सही जगह पे रखना होता है। और वो सारी चीजें हम कहाँ पे सीखेंगे? विंडोज में सीखेंगे। कभी कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई फाइल की जरूरत नहीं, बहुत पुरानी है, तो उसको कैसे निकालना है, डिस्कार्ड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो वो भी हम यहाँ पे विंडोज में सीखेंगे। ये सारी और बहुत सारी चीजें जो हम विंडोज में आज सीखने वाले थे। वेरी गुड। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबके पास लैपटॉप होगा या तो डेस्कटॉप होगा, या अगर आप मोबाइल से ज्वाइन किया है तो आपके मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड है तो आप विंडोज का मैं आज जो सिखाने वाला हूँ उसमें आप मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे। ओके। तो मैं इसलिए हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, और उसमें मिनिमम विंडोज इंस्टॉल होना चाहिए। भले पुराना विंडो हो तो चलेगा, नया की जरूरत नहीं, विंडोज 7 भी हो सकता है, विंडोज 10 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर विंडोज इंस्टॉल होना चाहिए और MS ऑफिस इंस्टॉल होनी चाहिए। वर्जन की कोई ज्यादा हमें वो नहीं है, कोई भी वर्जन चलेगा लेकिन होना चाहिए। विंडोज 7, विंडोज 10, MS ऑफिस भी 7 और 10 कोई भी हो चलेगा। ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विंडोज कैसे चालू करना है। तो विंडोज चालू करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो सबको सबको मालूम है कि कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है? कोई बताएगा मुझे कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है? मैं बताऊँ सर? कृणाल, एक मिनट। हाँ कृणाल, अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ है। 5 लोगों के अलावा किसी का वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करोगे क्या पूरा 3 महीना? और मुझे क्लास में बार बार ये थोड़ी ना बोलना अच्छा लगता है कि आप वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो। ये तो ज्यादातर टाइम फिर इसमें ही चला जाता है मेरा। देखो, अगर आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो तो ओके, आप कर सकते हो, चाय पी सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वीडियो अपना ऑन रखिए। मनीषा, मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर रही हो, है ना? अभी ऑफिस पहुंच रही हो। हाँ सर। हाँ, तो अभी वीडियो ऑफ रखिए, फिर आप ऑन कर लेना वीडियो ऑफिस जाके। ओके। सो कोई कौन मुझे वन बताएगा? सेकेंड में सर ऑन हाँ। हो जाऊँ? क्या? मैं बताऊँ सर? हाँ कृणाल, बोलो। हाँ, पहले दोनों सीट आती है ना, हम्म, वो मॉनिटर का, वो चालू करने का। फिर सीपीयू में बटन आता है, वो स्टार्ट करने का। हम्म, और ओके। फिर मॉनिटर चालू हो जाता है। फिर डेस्कटॉप पे पहले सब आते हैं, हाँ। प्रोग्राम प्रोग्राम हाँ। ऐसा। ओके। अभी मैं पूछता हूँ मानव से। हाँ मानव, अनम्यूट करके आंसर दो। क्या क्या था? मानव, हेलो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं क्या? मानव अभी आप म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। मैं What is this थैंक now? यू। No. What is this now? ओके, मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी सनील परमार को। सनील परमार, सनील। ओके सनील, अभी रुक जाओ, टाइम लग रहा है ज्यादा। अ, दीक्षित। सर। हाँ दीक्षित, मैंने कुछ प्रश्न पूछा अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर। हाँ तो सर उसका जवाब। सर पहले तो मेन स्विच ऑन करना होता है। हाँ। फिर सीपीयू का जो स्विच होता है वो बटन होता है उसको भी ऑन करना होता है। हम्म। उसके बाद कंप्यूटर का मॉनिटर ऑन होगा और उस पे हम्म। सब प्रोग्राम ऑन होंगे। ओके, बराबर है, वेरी गुड। तो थैंक दीक्षित ने आंसर दिया, और उससे पहले किसने दिया मुझे आंसर? नहीं, कृणाल ने मैंने दिया। सर। कृणाल ने दिया। तो कृणाल और दीक्षित ने जो बताया कि इस तरह से आपको अपना कंप्यूटर पहले तो स्टार्ट करना है। अगर आप लैपटॉप में काम करते हो तो लैपटॉप में भी एक स्विच होती है, वो उसको ऐसे यूं प्रेस करना होता है। जेसलिना पेरेरा, प्लीज म्यूट रखिए। थैंक यू। ओके, तो ये स्विच जब हम ये प्रेस करते हैं लैपटॉप का, तो और उसको पता है एक आध सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखना पड़ता है, और बाद में लैपटॉप भी स्टार्ट हो जाता है। और लैपटॉप स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपका जब स्क्रीन आता है ना, तो उसमें विंडोज लिखा हुआ आता है। आप सभी ने नोटिस किया है? वो विंडोज लिखा हुआ आएगा वहां पे। यस सर। और उसके साथ में आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है विंडोज, वो भी उसमें लिखा हुआ आता है। तो कोई मुझे बताएगी कि आपने जब आज कंप्यूटर ऑन किया, तो आपके कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? 10। कौन? जीतू? विंडोज 10 सर। 10 विंडोज 10 विंडो 10। विंडोज 10 है जीतू के कंप्यूटर में। ओके, और कोई बताएगा? लैपटॉप या कंप्यूटर में, या आपके पास टैबलेट हो और जिसमें विंडोज बेस होता है, तो कौन सा वर्जन है आपके उसके कंप्यूटर और लैपटॉप में? इसका मतलब क्या सारे के विंडो सारे लोग? हाँ। A11। ओके समर्थ, थैंक यू। थैंक यू। गुड। तो जो जो लोग कंप्यूटर या डेस्कटॉप से काम करते हैं, तो ये चीज सबसे पहले देखनी है कि हमारे कंप्यूटर में। मेरे में विंडो 12 है सर। ओके मनीषा, थैंक यू। विंडोज 12 है, गुड। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा वर्जन है, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे ले हम इस स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने बोला कि बहुत अच्छा कि पहले सीपीयू आपको मेन स्विच ऑन करनी है, फिर आपको सीपीयू ऑन करना है, और आपको ओके। कभी कभी मॉनिटर भी बंद होता है तो मॉनिटर भी ऑन करना पड़ता है, बराबर। और उसके बाद आपका स्क्रीन खुलता है, और उस स्क्रीन के अंदर एक और एक एक छोटा सा विंडो एक आता है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स आता है। वहां पे हमें क्या करना होता है? लॉग इन करना होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको वहां पे यूजर नेम पासवर्ड वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप घर के और भी सदस्य इस्तेमाल करते हैं, तो सबका अपना अलग अलग एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर में अकाउंट होता है। तो आपको अपना अकाउंट चूज करके वहां पे पासवर्ड डालना है, और फिर आप ऑन कर सकते हो। कितने लोगों ने आज सुबह जब ऑन किया अपना कंप्यूटर लैपटॉप तो पासवर्ड डाला था? कोई है ऐसा जिसने पासवर्ड डाल के ऑन किया? ओके, सोनाली दास, या गुड। मैंने सर। तो आपने भी, जी तो वेरी गुड। अब ये जो पासवर्ड हम ऐड डालते हैं ना, वो पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब, अगर आपने स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है तो आपको स्मॉल अल्फाबेट करना है, कैपिटल है तो कैपिटल, या कोई नंबर है तो नंबर भी डालना पड़ेगा। और इन
सभी चीजों का मिक्स करके डाला है आपने पासवर्ड, तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही वो पासवर्ड डालना है। अगर आपने वैसे ही पासवर्ड नहीं डाला तो एरर आएगी। ओके, तो पासवर्ड सही डालने के बाद आपका विंडोज ऑफिशियली अब काम करने के लिए पूरा स्क्रीन आपके सामने खुल गया है। मैं आप लोगों को मेरा एक बार एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। गुड। यस यस सर, सर। यस सर, यस। यस तो सर। वेरी नाइस। तो ये वाला स्क्रीन जो है ना, मैं इस स्क्रीन की बात करता हूँ। जब आप लॉग इन करते हो तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। अब ये स्क्रीन पे क्या क्या आपको दिखाई देता है, कोई बताएगा मुझे? मैं यस सर। खास करके मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा उमंग के कोई स्टूडेंट है तो वो मुझे बताए। उमंग संस्था से जो स्टूडेंट है वो मुझे बताए कि आपको मेरे स्क्रीन पे क्या क्या नजर आ रहा है। GOGLE ग्रोम ग्रोम ओके, ग्रोम और कोई? GOOGLE। ओके, थैंक यू। यस कौशल। Kaushal is saying icons. ओ कौशल, आइकन्स, बहुत, ये सब बहुत अच्छा जवाब दिया। आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, और क्या क्या दिखाई दे रहा, कौन बताएगा? यस सर। यस विक्रम, सर बोलो विक्रम। सर कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, जूम, क्रोम, फायरफॉक्स, हम्म, वीएलसी प्लेयर। हम्म, और सर आपको बॉटम में सर आपको वहाँ पे वाईफाई का, स्पीकर का और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी देता है राइट साइड में। ओके, राइट, ओके, करेक्ट, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मैंने अपनी स्क्रीन बताई। सबके स्क्रीन पे अलग अलग आइकन्स होते हैं, अलग अलग सेटअप होता है। किसी के आइकन्स राइट हैंड साइड पे होते हैं, किसी के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऊपर आइकन सेटअप करके रखता है। आइकन भी छोटे बड़े होते हैं, राइट? तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चीज भी हम इसमें विंडोज में कवर करने वाले हैं। ओके, गुड। कोई और कोई बताना चाहेगा जिसको कुछ ये सब लोगों ने बताया उससे थोड़ा अलग हो, जो आपने नोटिस किया? सर वॉलपेपर। वॉलपेपर, यस। तो मेरे यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे जो वॉलपेपर है वो डिफॉल्ट वॉलपेपर है, यानी कि विंडोज का जो वॉलपेपर है ना, वही विंडो। मैंने रखा है। हाँ, यस सर, ये विंडो 7 का है ना सर? हाँ, जी ओके। गुड, थैंक यू। ओके, तो अभी मैं अपना स्क्रीन में शेयर करके रखता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें मुझे बतानी है कि कैसे करना होता है। ओके, अभी ये जो स्क्रीन आपको मेरा दिख रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे तो ये जो व्हाइट कलर का जो एक आपको रिबन दिखता है ना, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। टास्क बार। हाँ, और ये टास्क बार के अंदर एक यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे माउस ओवर किया तो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा, स्टार्ट करके आया। हाँ, लिखा है। ये है स्टार्ट बटन। जैसे ही टाप। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक मेनू दिखाई दे रहा है। एक अलग से पूरा एक मेनू आ गया आपके सामने। इस मेन्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखे, जैसे जूम मैंने इंस्टॉल किया है तो जूम के बारे में है यहाँ पर। फिर गूगल मीट मेरे में इंस्टॉल है तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। फिर एक पीडीएफ रीडर राइटर है, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है। फिर एक मेरे यहाँ स्नीपिंग टूल है, एक्सेल है, कंट्रोल पैनल है। ये भी हम सीखने वाले कंट्रोल पैनल विंडोज के साथ साथ ही। फिर पेंट ब्रश है। बहुत सारे लोगों को पेंट ब्रश का यूज करने में बड़ा मजा आता है ना।
तो जैसे आप अपने पेपर पे पेंटिंग कर सकते हो, ठीक इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश, उसको उसकी मदद से आप पेंट भी कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर है कैलकुलेशंस करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन है ऑल प्रोग्राम्स करके लिखा है। तो मैंने ये जो ऊपर जो दिख रहे हैं ना, वो मेन प्रोग्राम जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। और ऑल प्रोग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए इतने सारे और भी प्रोग्राम्स है इसके अंदर। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको एडमिन दिख रहा है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, ये सारे फोल्डर्स है। फिर नीचे कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल उसके नाम से हमें पता चल जाता है कि हम सारा कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर के साथ कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, प्रिंटर अगर जुड़ा है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से करेंगे। कुछ डिफॉल्ट प्रोग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हेल्प एंड सपोर्ट बटन पे क्लिक करके हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ के उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, और हम अपनी कोई भी एरर आती है, कुछ तकलीफ है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स ऐसा करके लिखा है। आप सबको दिखाई दे रहा है? सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल करके लिखा हुआ। मुझे कोई प्रोग्राम सर्च यस करना है, सर। दिख रहा है यहाँ पे। मुझे हाँ कोई प्रोग्राम दिख रहा सर्च है। करना है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ लिख के। हम्म, जैसे मुझे मालूम नहीं है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक मैं लिखता हूँ स्निप करके लिखा, तो तुरंत तुरंत यहाँ पे आ गया स्निपिंग टूल करके एक प्रोग्राम मेरे पास है। फिर मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये कोई प्रोग्राम है, वर्ड करके कोई प्रोग्राम है क्या, तो मैंने वर्ड लिखा। तो देखो हमारे इसने क्या क्या इतनी सारी चीजें सर्च करके दे दी। उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 सर्च करके दिया, क्योंकि वो मैंने WORD वर्ड करके यहाँ पे लिखा है इसलिए, है ना। तो वर्ड वर्ड के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी प्रोग्राम है, वो सब यहाँ पे आ गए। फिर कंट्रोल पैनल में भी कुछ ऐसी चीजें जो वर्ड के रिलेटेड है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वर्ड लिखने से आई। अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो देखते कि क्या क्या आता है। देखो मैंने मयंक लिखा, तो मयंक से रिलेटेड जितनी भी चीजें कंप्यूटर में है वो सब यहाँ पे लिस्ट हो गई। तो आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ये आप सर्च का जो ऑप्शन में यहाँ पे दिखा ना, वो आप फाइल मैनेजर में जाके भी कर सकते हो, जो बाद में हम देखने वाले, लेकिन यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक शटडाउन का एक बटन दिख रहा है। शटडाउन के बटन के बाजू में एक एरो पे मैंने क्लिक किया, तो वो एरो पे देखो कितने ऑप्शंस आ गए। स्विच यूजर, मतलब आप एक यूजर हो जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज करो, आपके बाद किसी और को यूज करना है तो स्विच कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको लॉग ऑफ करना है तो लॉग ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी इसको लॉक कर देना है ताकि कोई और मेरे अलावा कोई और इसको टच ना करे, कोई काम सर ना आपकी करे, आवाज तो कट हो आपको। रही है। मेरी आवाज कट रही क्या? सबके लिए कट रही है या? हेलो। नहीं सर, ना ना आ रही है। आ रहा नहीं है। सर, आवाज आ रही हाँ, ओके, परफेक्ट, राइट। तो ये वाला जो बटन है, यहाँ पे आपको एक रिस्टार्ट का ऑप्शन है। आप अपना कंप्यूटर यहाँ से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर स्लीप मोड में डालना है, तो रिस्टार्ट और स्लीप मोड में काफी फर्क है। आप रिस्टार्ट करोगे तो पूरा प्रोग्राम सारा वो कंप्यूटर बंद होगा और फिर अपने आप शुरू हो जाएगा। कब ये रिस्टार्ट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब तो आपको ये लग हाँ, ये हैंग થતા तो कोई कई प्रॉब्लम आता है इससे रिस्टार्ट रिस्टार्ट करते। हम्म, ओके। और कोई बताएगा रिस्टार्ट क्यों करना पड़ता है कंप्यूटर? इसका क्यों करना था बोलो, क्यों करना पड़ता है? है सर। रिस्टार्ट अगर मोबाइल कंप्यूटर का हैंग करने लगे या फिर कोई काम ना कर रहा सॉफ्टवेयर, तो सर उसके लिए रिस्टार्ट करके उसको फिर से सही किया जा सकता है। हाँ, उसको सही किया जा सकता है। एक्सेलेंट, गुड आंसर, थैंक यू। ओके, अभी बाद में इसके बाद यहाँ पे रिस्टार्ट के बाद स्लीप, तो कंप्यूटर को कभी स्लीप मोड में डालना है।
हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम देखो, हम जब कंप्यूटर ओपन करते हैं और काम करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स खुले होते हैं, बहुत सारे फाइल्स खुले होते हैं। और हम उसको अगर शट डाउन कर दिया ना, तो जब वापस काम शुरू करना है ना, तो सारे प्रोग्राम्स और फाइल्स फिर से खोलने पड़ते हैं। अगर हम एक लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने वाले नहीं है, या लेकिन हमें उसको बंद नहीं करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्लीप मोड में डाल देंगे। आप लोगों को समझो, स्लीप मोड में मतलब उसको सुला दिया, और जब हम उसको माउस को जी या कीबोर्ड को टच करेंगे, प्रेस करेंगे की, तो तुरंत वो कंप्यूटर वापस स्लीप मोड में से जाग जाएगा, उठ जाएगा वो, है ना। तो ये स्लीप मोड है। उसके बाद एक है हाइबरनेट। इसको हिबरनेट भी लोग बोलते हैं, हाइबरनेशन, हिबरनेशन बोलते हैं। अब ये एक टेक्निकल टर्म है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा कि ये जो व्हाइट बेयर है ना, सफेद रींछ, ये सफेद रींछ यानी व्हाइट बेयर जो होता है ना, वो एंटार्क्टिका में पाया जाता है। जब एंटार्क्टिका में विंटर चालू होता है ना, तो ये जो व्हाइट बेयर है ना, वो अपने आप को एक ऐसी गुफा के अंदर लेके चला जाता है, बैठ जाता है। और वो विंटर 5 महीना 6 महीना चलेगा ना, तब तक वो कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, और वो शांति से चुपचाप सो जाएगा वहां पे जाके। मतलब वो सो जाने का मतलब कैसा है पता है, एक लंबी नींद में चला जाएगा वो, जिसको हिबरनेशन बोलते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर को ऐसे हिबरनेशन में भी रख सकते हैं। Even frogs also, sir. यस, वेरी गुड, या। सो ये इसका इंटेंशन है। अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये शट डाउन पे क्लिक किया, तो मेरा कंप्यूटर अब भी शट डाउन हो, जो अभी मैं करने वाला नहीं हूँ, नहीं तो हम सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये शट डाउन बटन से हम कंप्यूटर को पूरे की पूरी तरह से शट डाउन कर सकते हैं। जब आप शट डाउन बटन पे क्लिक करते हो, तो उस टाइम पे बाय चांस आपने कोई प्रोग्राम बंद करना छूट गया है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो और आपने शटडाउन पे क्लिक कर दिया, तो शटडाउन की प्रोसेस कैसी होती है, वो जितने प्रोग्राम आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ओपन है ना, वो सारे प्रोग्राम को वन बाय वन करके वो बंद करेगा, पहले प्रॉपरली बंद करेगा। क्योंकि आप बंद करना भूल गए हो, या आपको लगता है कि मैं शटडाउन कर दूं, कौन एक एक करके बंद करने जाए, आलस है या कंटाला आता है। तो शटडाउन करने के टाइम पे आप इस वो प्रोसेस है, उसमें भी एक ऑप्शन होता है, फोर्स टू शटडाउन भी आएगा एक। आपको लगता है कि भले ठीक है, जो भी है खुला है तो खुला है, फोर्स टू शट डाउन मतलब जबरदस्ती वाला काम करना है, तो वो फोर्स टू शट डाउन वाला भी एक बटन होता है। वहां पे शट डाउन करोगे तब की बात है, राइट, गुड। लेकिन आपने सारे प्रोग्राम पहले बंद कर दिए थे, और आप शट डाउन बटन पे क्लिक करते हो, तो विद इन फ्यू सेकंड्स में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अभी ये कंप्यूटर शट डाउन किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने मॉनिटर को बंद करना है तो मॉनिटर बंद कर लो अपना, और मेन स्विच बंद कर लो। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, मेन स्विच ऑन करने से किया था, और अभी हम खत्म कहाँ पे कर रहे हैं, मेन स्विच ऑफ करने तक आ गए। तो ये पूरी प्रोसेस कैसी होगी, कंप्यूटर चालू करने से लेके कंप्यूटर बंद करने तक एक पूरा एक एक चीज हमने पूरी एक समझ ली। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। और दीक्षित, आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज है, कोई सवाल है आपको, अनम्यूट करो। पहले वो क्वेश्चन पूछे थे ना, उसका दिया था इसलिए। अच्छा, अभी अभी लोअर डाउन कर लो हाथ अपना। ओके, तो ये जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, उसमें किसी को कोई सवाल है? नो सर। नो सर। ओके, परफेक्ट। लेकिन मुझे सवाल है, मैं पूछूं? पूछो सर। ओके, मैंने मेन स्विच चालू किया, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कंप्यूटर शुरू नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या होता होगा कि मेरा कंप्यूटर शुरू नहीं हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? सर मैं बोल पता। वो पावर चेक करना पड़ेगा ना सिर्फ। पावर चेक करना पड़ेगा, ओके। हाँ। या तो सब कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर? हाँ, रैम हार्ड डिस्क की डिस्प्ले। हाँ, देखो, ये जीतू, कृणाल और दीक्षित ही आंसर दे रहे, बाकी सब लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? जेसलीना, आप आंसर दीजिए। सोनाली, सोनाली को तो मालूम होगा। लब्धि, आप आंसर दीजिए। गणेश, सुपर्णा, मनीषा,
देखो हमें ये एक्सप्लोर करना है। हाँ, मैंने कंप्यूटर मेन स्विच ऑन किया है, सीपीयू भी ऑन किया है, मॉनिटर भी ऑन किया है, लेकिन कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो सब ऑन है तब भी नहीं चल रहा। क्या, सॉरी? मैं बोल रहा था सर कि ऑल मतलब जितना है वो सब ऑन हो चुका है सर, तब भी नहीं चल रहा। हाँ, वही तो क्वेश्चन है, तो क्या करना चाहिए? सर शट डाउन करके फिर से ऑन करना। Restart. हाँ, रीस्टार्ट, ओके। लेकिन मेरा सवाल क्या है पता है, आपने मेन स्विच ऑन किया है और पावर सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कंप्यूटर चालू नहीं होता है, तो क्या करने का? आप क्या सर क्या कर विंडो सकते हो? हाँ। सर प्रॉपर पिन कोड कनेक्शन चेक करना अपना पड़ेगा। पिन कोड जो डालना है, पिन कोड या हाँ, ओके। प्रॉपर कौशल बोलना कनेक्शन एक चेक मिनट, हाँ। करना है। गणेश, एक मिनट, कौशल बोलना चाहते हो, बोलो। चाहिए। He's saying signing in. हाँ, Sign साइनिंग in. इन। ओके, साइनिंग इन, परफेक्ट। गणेश? सर प्रॉपर कनेक्शंस चेक करेंगे। प्रॉपर यस, कनेक्शन यस गणेश, प्रॉपर कनेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि वो पावर प्लग है ना, वो बराबर लगाया हुआ है कि नहीं। फिर सीपीयू के ढीला साथ होता सीपीयू के बैक साथ साइड में जो मॉनिटर कनेक्ट करते तो मॉनिटर का वायर हिल गया है कि नहीं हिल गया है, बैक वो साइड में चेक जो करना पड़ेगा। कनेक्टिंग वायर्स है वो चेक करेंगे। ये भी हाँ, चेक करना है। तो ये सारे भी। सारे कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, रीचेक कर लेंगे कि भाई कनेक्शन तो बराबर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चालू है घर में, पंखा चालू है, लाइट चालू है, लेकिन कंप्यूटर ही नहीं हो रहा है, सिर्फ चालू है ना। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। मैं कल का मेरा एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ। मेरा कंप्यूटर तो कल चालू हो गया, मेरी मीटिंग थी तो, लेकिन जब मैं मीटिंग में गया ना, मैंने जूम ऑन किया, तो कुछ पूरा मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा था। अभी मीटिंग चालू था तो मैं कैमरा ऑन करने में टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने उन लोगों को बोला कि यार मेरा कैमरा कुछ हुआ है, मैंने मेरा सीपीयू को हिलाया था, मतलब उसका लोकेशन चेंज किया था कल। तो जब मैं सीपीयू का लोकेशन चेंज किया, तो कंप्यूटर के साथ जो सीपीयू के साथ जो कैमरा का यूएसबी पोर्ट में लगाया था ना, वो पता नहीं थोड़ा लूज हो गया होगा कनेक्शन। तो मेरा 1 घंटे का पूरा मीटिंग बिना कैमरा ऑन किए मैंने कल लिया। मैंने बोल दिया था बाकी लोगों को कि भी ऐसा इश्यू आ रहा है, अगर मैं अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो अपना मीटिंग का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि देखो ये चीज भी चेक करनी चाहिए, खास करके जब आप जूम पे ऑनलाइन पे पढ़ते हो या ऑनलाइन पे कहीं पे भी जाते हो, आपको 5 या 10 मिनट पहले लॉग इन करके ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है कि मेरा वीडियो चल रहा है, मेरी आवाज बराबर आ रही है। आप पता है जूम में आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप जूम में आते हो, आप अपना ऑडियो और वीडियो चेक करने का, टेस्ट करने का एक ऑप्शन होता है। तो मैं बोलूंगा कि हमेशा 5 मिनट 10 मिनट लॉग इन करके ये चीजें री एस्टेब्लिश कर लो कि हाँ आपका सब कुछ सही तो चल रहा है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं तुरंत मीटिंग में गया, और तुरंत मीटिंग में गया और मीटिंग चालू होने के बाद पता चला अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने जूम में से लॉग आउट किया, वापस लॉग इन किया, लेकिन फिर भी कैमरा नहीं हो रहा था चालू। फिर 1 घंटे की मीटिंग के बाद मैंने देखा तो वो लूज था कनेक्शन। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें ये चीजें पता है इतनी छोटी छोटी है ना, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा कंप्यूटर क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है वो हम ज्यादातर अपने आप ही कर सकते हैं, खुद ही। गुड। किसी ने बोला कि हाँ हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर शुरू नहीं होगा, वो बराबर है आपकी बात, लेकिन हमारे एंड पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें करके हम कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो मैंने आपको शटडाउन के बारे में ये बताया। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे, मैं अभी स्विच ऑफ वाला तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तो हम लास्ट में सब लोग करेंगे। अभी प्रोग्राम को कैसे लोड करना है, यानी कि विंडो को ओपन करना है कैसे। अच्छा, मैं कभी कभी यहाँ पे थोड़ा साइड में देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरा लेक्चर के पॉइंट्स मैंने खोल के रखे हैं, तो मैं कभी कभी इस तरफ देखता हूँ यहाँ पे। अभी अपने को विंडो ओपन करना है, तो कन्वेंशनल जो विंडो हमारे घर, जो बोलते हैं ना, अ कन्वेंशनल विंडो इन ए हाउस हैज टू बेसिक ऑप्शंस, ओपन और शट। हमारे घर की जो खिड़की होती है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, हम हमारे घर की खिड़की को खोल सकते हैं
जरूरत नहीं होने पे फिर हम उसको खिड़की को बंद कर सकते हैं। बन सकते। Microsoft Window is similar in the sense that it can also be opened and closed. तो ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल विंडो हम ठीक उसी तरह से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। घर की खिड़की खोलने के लिए तो हाथ लगाना पड़ता है ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की विंडो को खोलना बंद करने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या करना होता है पता है? ये देखो मैंने ये ऊपर किया, ये माउस से क्लिक करके हम विंडो, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो खोल ओपन सकते हैं कर सकते, या बंद कर बंद सकते। कर सकते हैं। ओके, गुड। बट इनसाइड ईच माइक्रोसॉफ्ट विंडो देयर इज ए प्रोग्राम रनिंग, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक प्रोग्राम चलता है। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से, जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। ओके, और उसमें से हमें जिस प्रोग्राम में जाना है उस प्रोग्राम पे माउस से क्लिक करके हम काम कर सकते हैं अपना। दूसरा तरीका क्या है? आप लोगों ने मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे आइकॉन्स देखे, आप उसमें से, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, मुझे स्टार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिलेक्ट करना है, मुझे इतनी लंबी झंझट में नहीं पड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आइकन क्रिएट करके या शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पे रख दूंगा। अच्छा, बाय द वे, इसको, जिसको मालूम नहीं है कि ये कैसे होता है वो भी मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्टकट क्रिएट करना। तो ये आप माइक्रो स्क्रीन के ऊपर अपने ये आइकन ला सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है तो आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन के ऊपर सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करके आप उसको खोल सकते हो। अगर मुझे रोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी एक डॉक्यूमेंट पे रोज काम करना है तो मैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट या आइकन डेस्कटॉप पे बना दूंगा। राइट, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जो मेन विंडो होता है ना, विंडो का विंडो, फर्स्ट स्क्रीन, उसको डेस्कटॉप बोल। तो मैं वहां पे रख दूंगा और मुझे जब भी काम करना है तो मैं वहां से काम शुरू कर सकता हूँ अपना, क्लिक करके। तो दूसरा तरीका क्या है, आइकन्स के ऊपर क्लिक करके भी हम अपना काम कर सकते हैं। फिर हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जब आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको एक पॉपअप मेनू आता है, और वो पॉपअप मेनू में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। कभी कभी आपको सिंगल क्लिक करना रहेगा और कभी डबल क्लिक करना रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने माउस के सेटिंग्स कैसे रखे हैं। मुझे हमेशा है ना, मुझे माउस के सेटिंग सिंगल क्लिक वाले मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि डबल क्लिक में टाइम जाता है। हालांकि डबल क्लिक एकदम फटाफट करना होता है, फिर भी मैं, अगर मुझे कोई प्रोग्राम खोलना है डेस्कटॉप के ऊपर से मेरे, तो मैं एक बार क्लिक करके खुलने खुलना ज्यादातर पसंद करता हूँ। तो आपके माउस के सेटिंग्स के ऊपर जाता है और आपकी चॉइस के ऊपर जाता है कि आप कैसे प्रोग्राम्स वो विंडोज में ओपन करना चाहते हो। ये वाला क्लियर है सबको आपको? ओ हाँ, क्लियर सर। ओके, नीलेश प्रजापति दीक्षित, आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ वो बोलो। आप जो बोल रहे हो कि डबल क्लिक में नहीं करना तो एक क्लिक में कर सकते हैं। सर उसको सेटिंग में कुछ जाना होता है उसके अंदर करने के लिए कुछ? हाँ, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। माउस सेटिंग्स उसको बोलते हैं, कंट्रोल पैनल में माउस के सेटिंग्स आते हैं, वहां से हम बदल सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू। दीक्षित, आप अपना हाथ नीचा कर दो ना, लोअर लोअर योर हैंड सो दैट यू नो, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको कुछ पूछना है, इसलिए मैं फिर रोकता हूँ अपने आप को। दीक्षित, आपका वीडियो भी बंद है, वीडियो चालू करो। गणेश, वीडियो बंद है आपका। विक्रम, लब्धि, संजय पटेल, सुपर्णा, सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है मेरा। नेटवर्क इश्यू है तो हाँ, देखो। लॉग आउट हो। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूं, पढ़ने का असली मजा तब आता है जब मेरा और आपका वीडियो चालू होता है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पता है, आई टू आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप सब लोग मुझे देख सकते हो ना, बराबर? अगर यस मैं सर। अगर मैं आपकी यस सर, क्लास अगर मैं आपकी क्लास वीडियो बंद करके लूँ तो कैसा रहेगा? हम्म, समझ अच्छा में नहीं आया। नहीं। तो पता है, आप रेडियो पे कॉमेंट्री सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं, ऐसा लगेगा। तो मैं कोई रेडियो नहीं चला रहा हूँ और आप लोग पता है कैसे बैठे हो मेरे सामने, तो मुझे नहीं पता चलता कि ये लब्धि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है मेरे साथ।
संजय क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता। तो आप लोग अपना जो इंटरनेट का जो इश्यू है ना उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लीजिए। अभी हमारे देश में एक चीज है पता है आप सबको, कोरोना से पहले हमारा इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था और सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कोरोना कोरोना के यस सर। दौरान और कोरोना के बाद इंडिया में वर्क बहुत ही अच्छा सर इंटरनेट वर्क फ्रॉम सर्विस अभी होम हो का गया। जब से ये सिलसिला चालू हुआ ना सर, क्या? तो Yeah, when it started from work from वर्क home, फ्रॉम होम जब से हुआ ना तब से it's या become super fast. एग्जैक्टली। तो वर्क Yeah. फ्रॉम होम हुआ, अच्छी सर्विस मिल रही है, हमारा डेटा दुनिया में सबसे सस्ता भी है, मालूम है आप लोगों को? दुनिया में Yes, sir. यस सबसे सर। सस्ता इंटरनेट सर्विस हमारे देश में है। इसीलिए तो यहाँ पे लोग दिन में 5 से 7 घंटा मोबाइल पे बिताते हैं, पता है? फ्री में सस्ता मिलता है, फ्री में मिलता है नहीं, इसलिए वैल्यू नहीं है। बट लेकिन मैं मेन चीज पे आऊं ना, तो अभी जब हमारे पास इतना अच्छा इंटरनेट है, सब कुछ फैसिलिटी इंडिया के पास है, तो फिर आप लोग ऐसे ऑफ वीडियो नहीं रह सकते हो, पता है? आपको ऑन वीडियो रहना है हमेशा। ओके ओके गुड, सर। थैंक यू। हाँ तो मैं आगे आता हूँ, अभी बात अपनी करता हूँ। अभी हमें विंडो क्लोजिंग करने का भी थोड़ा हमने देखा था। विंडो क्लोज करने के लिए हम शट डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, वो कीबोर्ड के ऊपर भी एक बटन होता है क्लोज करने का, शायद आप लोगों को मालूम होगा। मेरे कीबोर्ड पे मैं देखता हूँ कि पीसी का एक एक बटन है, उसके ऊपर पीसी लिखा है। अगर मैं उसको दबाऊंगा ना कीबोर्ड पे, तो भी मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, राइट? आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप में भी ऑफ करने का बटन होता है, डायरेक्ट ऑफ करना। आपको लैपटॉप का स्विच ऑफ करने का बटन यूज नहीं करना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। और कोई बता सर सकता है पीसी में आपको कंप्यूटर ऑफ करने के लिए? हाँ विक्रम बोलो। सर पीसी में शॉर्टकट की होता है सर, कंट्रोल प्लस पता नहीं एस या हाँ आई थिंक, ये मैं भूल ओके, गया था मैं सर। मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे यही भी था विक्रम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, आप ये तीनों की को एक साथ दबाओगे ना, तो आपको ऑप्शन आता है कंप्यूटर बनने का। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो विक्रम ने अभी बोला ना, कंट्रोल ऑल्टर। लेकिन आप लोग अभी वो की मत दबाना प्लीज, कोई भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये की वर्क करती है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ. ये सर। ओके। अभी हाँ मैं दिख रहा है सर। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट ये तीनों को मैंने साथ में दबाया। अभी क्या दिखता है आपके स्क्रीन के ऊपर? कुछ दिखता है आपको कुछ स्क्रीन नहीं के दिख ऊपर? रहा है सर। अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, सर क्योंकि कुछ मैंने कंट्रोल ऑल्टर डिलीट बटन दबाया ना, तो अभी डिलीट। मेरे स्क्रीन के ऊपर लॉक दिस कंप्यूटर आया, स्विच यूजर आया, लॉग ऑफ आया, चेंज पासवर्ड आया, स्टार्ट टास्क मैनेजर आया और कैंसल आया। और सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे एक लाल कलर का बटन आया जहां पे शट डाउन। शट डाउन करने का एक स्विच दिया है। ओके अभी मैंने बंद किया, अभी मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा जी सर दिख रहा है। है? ओके गुड। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। जब हम कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, आप साथ में अगर नोट्स अपनी बना रहे हैं तो ये लिख लेना, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, ये तीन बटन एक साथ दबाने हैं। मतलब आप ऐसा नहीं, पहले धीरे से कंट्रोल दबाया, फिर धीरे से ऑल्टर दबाया, फिर धीरे से डिलीट दबाया, ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट फटाफट तीनों तीन एक साथ। जब आप ये करते हो ना तो आपको जो ऑप्शन मिलते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन होता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के अंदर भी जाके आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। आपको कोई कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए जिसका प्रोसेस चल रहा है और आपका कंप्यूटर उसकी वजह से हैंग हो गया है, ये खास सुनना हाँ जो मैं बता रहा हूँ। आपका कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है लेकिन हैंग हो गया है, जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर में आगे कुछ काम नहीं कर सकते हो, तो आपको कंट्रोल ऑल्टर ऑल्टर डिलीट बटन दबाना है और वहां पे टास्क मैनेजर खुलेगा। टास्क मैनेजर में जाके जो प्रोग्राम हैंग हो गया है वहां पे क्लिक करके आपको एंड प्रोसेस करना है, तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और आपका कंप्यूटर जो हैंग हो गया था वहां से वो फ्री हो ओपन गया, होगा। फ्री हो गया। अभी वापस आप उस प्रोग्राम को चालू कर सकते हो। ओके वेरी गुड। अभी डेट और टाइम पे जाते हैं। आप सबके कंप्यूटर में राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है हाँ सुबह दिख के रहा है दस पूरा। बजकर 17 मिनट हुए हैं और आज की तारीख है 10
जनवरी 2024, ये चीजें आपको दिख रही है वहां पे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे। ओके, अभी ये जो टाइम है 10:17 मुझे दिखाई दे रहा है मेरे कंप्यूटर में। जब मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूं तो मेरा कंप्यूटर, उसके अंदर एक सिस्टम होती है जो बायस बोलते हैं, BIOS। वहां पे कंप्यूटर का टाइम सेट है और वो वहां से टाइम पिकअप करता है और यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये टाइम है ना, थोड़ा आगे पीछे चला जाता है, तो आपको वो टाइम और डेट का सेटिंग करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से इसका टाइम आपको चेंज करना है, डेट चेंज करनी, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। अच्छा, किसी के बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर दो। ओके, मैं अभी अपना स्क्रीन ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कैलेंडर दिख रहा है अपने स्क्रीन पे जो मैं दिखा यस रहा सर। हूँ। ओके, यहाँ पर जनवरी 2024 लिखा है, ऊपर डेट ओके। लिखी है और बाजू में क्लॉक दिखाई है और क्लॉक के नीचे टाइम भी लिखा है और आज वेनसडे है, ये चीज भी लिखी है। और सबसे नीचे लिखा है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो हम इसके अंदर जाने वाले, लेकिन पहले हम यहाँ पे सेटिंग ये हुआ समझते टू। हैं। देखो यहाँ पे ये जनवरी 2024 लिखा है, मैं ये एरो पे क्लिक करूंगा तो मीटिंग फेब्रुआरी में टू। 2024 आया। हेलो, फेब्रुआरी 2024 आया। और एक क्लियर किया तो मार्च 2024 आया। लेकिन अभी हम जनवरी में है तो जनवरी रखते हैं। और आज की डेट 10 तारीख है तो वो 10 तारीख पे उसके ऊपर ऑलरेडी हाईलाइटेड है। जी लेकिन सर। अगर मुझे डेट बदलनी है, मान लो कि आज 10 तारीख है लेकिन मेरा कंप्यूटर अगर नौ मीटिंग तारीख में में जा टू। रहा है, तो પછી ફોન કરું। कृणाल म्यूट करो प्लीज। थैंक यू कृणाल। ओके, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर सकते हैं और ये वाला जो है वो टाइम का है, तो यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम के सेटिंग पे। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक अलग विंडो ओपन हुआ, जहाँ पे, हाँ यस सर। हाँ, जहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा है, फिर एक दूसरा टैब है एडिशनल क्लॉक है और तीसरा टैब है इंटरनेट टाइम। तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम डेट एंड टाइम पे है। तो यहाँ पे ये 10:20 और 33 सेकंड, 34 सेकंड, देखो इस तरह से ये सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। अगर जी मुझे सर। यहाँ पे चेंज करना है तो मैं चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ से हम सारा चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 10, 20 और 50 है। अभी मैं ऊपर का एरो क्लिक करूंगा, 10 की जगह पे 11 हो गए। एक और क्लिक है तो 12 बज गए, राइट। फिर वापस में 10 पे आ गया। अगर मुझे मिनट चेंज करनी तो मुझे मिनट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक किया तो मिनट सिलेक्ट हो। अभी मैं मिनट चेंज कर सकता हूँ, देखो 22, 23, 24, 25। आप लोगों को ये चेंज होता दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर? हाँ दिख रहा है सर। गुड, यस थैंक सर। यू। तो ये देखो सेकंड, मैंने मिनट बदली। अभी मुझे सेकंड चेंज करना है तो मैं सेकंड के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड चेंज कर सकता हूँ, राइट। ये सारे मैंने यहाँ पे चेंजेस किए। अभी मुझे, अगर मैं ओके करूंगा ना, तो ये जो सेटिंग मैंने बदला ना, वो सेटिंग अभी मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चेंज हो जाए। अगर मुझे अपना सेटिंग नहीं चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा। कैंसिल कर दीजिएगा। यस सर। कैंसिल पे क्लिक किया तो वही टाइम रहा जो मेरे कंप्यूटर पे अभी है। ओके, अभी उसके बाद नीचे देखिए टाइम जोन लिखा है। टाइम जोन के अंदर UTC प्लस 5:30 लिखा है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो हम इंडिया में ये, हमारे कंप्यूटर पे ये वाला टाइम जोन हम हमेशा प्रीफर करते हैं। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम में हम 5.5 घंटा ऐड करते हैं तो इंडिया का टाइम आता है। और इंडिया का टाइम चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये सब जगह पे 5:30 ऐड करने से आता है।
अभी हमारे पास हमारा कंप्यूटर जो टाइम दिखा रहा है 10:22, तो ये टाइम एक्यूरेट टाइम है अभी। मुझे अगर टाइम जोन चेंज करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ टाइम जोन चेंज करने के ऊपर। तो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, देखो दुनिया भर के सारे टाइम आ गए, देखो दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, लेकिन आपको टाइम चेंज नहीं करना है, आपको तो टाइम अपना इंडिया का ही रखना है, ठीक है? क्या क्या है? अगर लेकिन मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता हूँ, अभी 1 घंटे के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी में पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर उस टाइम पे मुझे अपनी क्लॉक चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया का टाइम, राइट? अगर मुझे यूएसए में काम करना है, तो मैं यूएसए के टाइम जोन के हिसाब से काम करता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर पे वो मुझे टाइम चाहिए, तो उस टाइम पे मैं अपना टाइम जोन चेंज कर सकता हूँ। उससे फायदा क्या होता है पता है? टाइम जोन चेंज करने से, अगर आप उस टाइम जोन में काम करते हैं तो तो उस टाइम पे आपके सामने यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से या कोई भी अलग कंट्री से जिसके आस साथ लग आप ऑनलाइन काम करते हो, उसको गाना बार वाले बार टाइम पूछने की जरूरत नहीं। अरे भाई तेरे यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, मेरे यहाँ पे इतना हुआ है, तो वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें मीटिंग हमें जैसे मैं अभी 12 बजे ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा, इंडिया टाइम 12 बजे, तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे शाम को 5:30 होते हैं। तो 12 बजे से 1 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ, तो वहां पे 5:30 से 6:30 की क्लास होती है। तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं स्टूडेंट को, अगर मैंने अपना टाइम जोन चेंज किया है तो, ठीक है? लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप रोज टाइम जोन चेंज करो। हमें अपना इंडिया का टाइम रखना है, कभी जरूरत होती है जब आप इस तरह का काम करते हो तब भी आप चेंज करो, राइट? ओके, तो आज हमने यहाँ पे डेट और टाइम सेटिंग्स के ऊपर पढ़ा है। कुछ पॉइंट अभी है जो जैसे बैकग्राउंड बदलना है, स्क्रीन सेवर कैसे बदलना है, राइट? माउस के सेटिंग्स कैसे करने हैं। अब ये सारे टॉपिक हम कल कवर करेंगे, यस सर। लेकिन ओके सर। मैं आप यस सर। सबको एक होमवर्क देता हूँ अभी। जो मैंने आज सिखाया है, अगर आपने अभी नोट्स बनाई है तो ठीक है, लेकिन ये क्लास के बाद आप इसकी नोट्स बना लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले हैं आप लिख लो। और आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रिपेयर करके कल आप आओ और यहाँ पे मुझे क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है सर ओके ओके ठीक है। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो सेम टाइम। हाँ 5 मिनट पहले लॉग इन करें, अपना मैं ऑडियो वीडियो चालू रख के। Thank you, ओके sir. ठीक Thank you सर। so very much for your time. या Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सर Have a good बाय day. बाय सर Bye bye. बाय See बाय, you. गुड डे। सी See यू, you. गुड डे। Bye. बाय।